Hello friends, today we will study chapter number 1 of class 12, that is Indian economy on the eve of independence. So let's start with the introduction, that is origin of British rule. The British rule over India changed the course of history in India. The foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey fought in 1957. Now this date is very important, that is Battle of Plassey, which was fought in 1957. Now this battle was between the British East India Company and Nawab of Bengal under the leadership of Robert Clive, and this battle is significant because it marked the beginning of British rule in India. Next, the basic purpose of British rule. What was the basic purpose of British rule to come in India? The main purpose of British rule in India was to use Indian economy as feeder economy for the development of British economy. They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. उन्होंने क्या किया? इंडिया का नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों ही अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी खुद की ओन कंट्री की ग्लोरी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर दिया. Now next, the low level of economic development under colonial rule. Before the advent of British rule, Indian economy was characterized with the following features. British rule से पहले जो Indian economy का status था, what was that? First of all, the Indian economy was a very prosperous economy. Before British rule, Indian economy was an independent, self-reliant and prosperous economy. इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, सेल्फ रिलायंट थी और प्रॉस्पेरस थी. सेकेंड, एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स agriculture was the main source of livelihood for the most of people and it engaged about 2/3 of the total population. मीन्स जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का और जो 2/3 जो पॉपुलेशंस थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी. Thirdly was well-known handicraft industries. India was also well known for its handicraft industry in the field of cotton and silk textiles. Now these handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standards of craftsmanship. India was well known for its handicraft industry, which is for example like cotton and silk textiles, and its fine quality of material, which was of a high standard of craftsmanship. Now this twofold strategy transformed the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain. Now, Britishers' twofold strategy. What do you mean by twofold strategy? It means that Britain जो थी raw material इंडिया से ले जाती थी और finished products बना के वापस इंडिया में उसको बेचती थी. Let's revise. First of all, introduction. In this, we have studied about the Battle of Plassey, which was fought between British East India Company and the Nawab of Bengals under the leadership of Robert Clive. Now, what was the basic purpose of British rule to come in India? The basic purpose was to exploit the India's natural as well as human resource for the glory of their own country. Then we have studied that what was the advent of India before the British rule. Indian economy कैसी थी British rule से पहले? It was prosperous economy, it was agrarian economy and well known for its handicraft industries. And what was twofold strategy of Britishers? Twofold strategy of Britishers means that they want raw materials from India and then produce finished goods and sell them to India again. Now next is the meaning of colonialism. What does this mean? It refers to a system of political and social relation between two countries of which one is the ruler and other is its colony. Colonialism का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जिसमें दो कंट्रीज़ हैं, एक उसमें रूलर है और दूसरी उसकी कॉलोनी है. अब इन दिस रूलर के पास सारी पॉलिटिकल कंट्रोल होता है. The ruling country not only has political control over the colony but it also determines the economic policies of the dominated country. दो कंट्रीज़ जो होती हैं उसमें फर्स्ट वॉज जो रूलिंग कंट्री होती है उसके पास पूरा पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक कंट्रोल वी कैन से होता है. However, no sincere attempt was made by British government to estimate India's national per capita income. सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि कोई सिंसियर अटेम्प्ट वॉज नॉट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की नेशनल पर कैपिटा इनकम को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए. But there was some individual attempts were made by experts like Dadabhai Naoroji, William Digby, Friendly Shreyas, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai. इन सब ने मेहनत तो करी, कुछ attempts भी करे, but however finally estimates of Dr. Rao on national per capita income were considered very significant. ये नोट कर लेना, डॉक्टर राव on national per capita income theory significant थी. Now next,
Agricultural sector. This is the very important sector. Nearly 85% of the country's population live mostly in villages and derive livelihood directly or indirectly from agriculture. Means जो 85% थी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन वो विलेजेस में जो थी वो डिपेंडेंट किस पे थी, उनकी लाइवलीहुड जो डिपेंडेंट थी वो किस पे थी, एग्रीकल्चर. Now, agriculture sector. Nearly 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood. Even with this large portion of population engaged in agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw material for industry. मीन्स इतने लार्ज प्रोपोर्शन होने के बाद भी जो है एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन जो थी वो फिर भी सेल्फ सफिशिएंट फूड और रॉ मटेरियल में नहीं बन पा रही थी. What was the main reason for that? The main reason for this that was stagnation in agriculture sector was first land settlement system, second commercialization of agriculture, low level of productivity, scarcity of investment. We will discuss it one by one. First of all, let's take land settlement system. The most important reason for stagnation in agriculture sector was the introduction of zamindari system, which was also known as permanent settlement system, introduced by Lord Cornwallis in 1973 by the colonial government. Now, Indian zamindari system, profit accruing out of agriculture sector went to the zamindars in the form of lagan. ज़मींदारी सिस्टम्स का मतलब क्या होता है ना, तो लैंड के जो जो ज़मींदार होते थे और वो छोटे छोटे जो लेबरर्स होते थे, लेबरर्स क्या कहते हैं, उनको टेनेंट कहते हैं. ठीक है, टेनेंट्स को अपने खेत पे रखते थे काम करने के लिए, और जो भी उससे प्रॉफिट होता था उसको इन द फॉर्म ऑफ लगान, उसे लगान कहते थे, और वो ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता था. द मेन इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स. नो, ज़मींदार्स का जो मेन मोटिव था वो था सिर्फ लगान कलेक्ट करना. रिगार्डलेस मीन्स वो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर्स जो थे, मीन्स टेनेंट्स जो थे, लेबरर्स जो थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस वॉट एवर वॉज दैट, उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे. द डेट्स ऑफ डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक सम ऑफ लगान वॉज ऑल्सो फिक्स्ड, और एक डेट थी जो कि फिक्स्ड थी कि भाई इस फिक्स डेट पे उनको लगान जो है वो दे दिया जाए. नाउ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? जहाँ एग्रीकल्चर जो थी सिर्फ इंडिया में लाइवलीहुड के लिए जानी जाती थी, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर उसको कमर्शलाइज कर दिया गया. Commercialization means for profit motive. It means production of crops for sale in the market rather than for self consumption. Means जो crops जो थे पहले livelihood के लिए इरिगेट होते थे, अब वो मार्केट में सेल करने के लिए इरिगेट होते हैं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हाई प्राइस for producing cash crops like cotton or jute. However, this did not improve the economic condition of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries. Now, in this, farmers were given higher prices for producing cash crops like cotton or jute, which did not improve the economic conditions of farmers. क्यों? मतलब कॉटन और जूट कैश क्रॉप्स माने जाते हैं, पर इनको भी इरिगेट, इनको एग्रीकल्चर इनमें ग्रो करने के बावजूद भी इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फार्मर्स की वो ग्रो नहीं हुई, वो इम्प्रूव नहीं हुई, बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स. क्यों? क्योंकि वो पहले जो लाइवलीहुड के लिए फूड क्रॉप्स बनाते थे लाइक बाजरा, वीट और वैसा, अब वो कैश क्रॉप्स बनाते हैं. ठीक है. Now, low level of productivity. Second जो केस था stagnation of agriculture का reason था, that was low level of productivity. Now, low level of technology, lack of irrigation facilities like the dependent upon rainfall for irrigating the crops, and negligible use of fertilizer resulted in low level of productivity. इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी मॉडर्न नहीं थी. देयर वॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. वो होली डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे कि जब बारिश आएगी तब उनको फसल को पानी मिलेगा और तब वो ग्रो करेंगी. एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स विच रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. उनके पास प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं थे, जिससे कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गई थी. द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर.
और जो कल्टिवेटर थे दैट मीन्स जो लैंड था जिनके पास, उनके पास ना ही ऐसे मीन्स थे और ना ही इतना पैसा था कि वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सके ताकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाए. द जमींदार्स हैज़ नो रूट्स इन विलेजेस while the British rule spent little on agriculture, technical और mass educations. ज़मींदार्स विलेजेस से बिल्कुल अटैच नहीं थे और ब्रिटिश रूल जो है वो एग्रीकल्चर पे, टेक्निकल पे या मॉडर्न एजुकेशन जो भी है, मास एजुकेशन, उस पर वो बिल्कुल भी खर्च करना नहीं चाहता था. एंड एज अ रिज़ल्ट इट वॉज मेड डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और इसी के रिज़ल्ट में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी था वो यूज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया. Now, the fourth reason was scarcity of investment. Now, India's agriculture was facing scarcity of investment, terracing, flood control, and drainage. Means उनके पास investment करने के लिए terracing में flood control और drainage system इनके पास पैसा नहीं था. As farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenant small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. What does this means? कि उनके पास इन्वेस्टमेंट की स्केर्सिटी थी कि वो जो है टेरेसिंग, दैट मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी होती है एक, फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज सिस्टम. जैसे मान लो बारिश आ गई तो पूरा खेत भर जाता, तो उसका ड्रेनेज के लिए उसके पानी को निकलने की जगह नहीं थी. तो ये सब चीज़ें जो बनाने के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी नहीं था, ना तो रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी थी कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें. नाउ द सेकेंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर. Now first of all we have discussed about agriculture sector. Agriculture sector में क्या क्या हुआ था और क्यों stagnant हुई थी, उसके 4 रीज़न थे, which was first land settlement system, commercialization of agriculture, third low level of productivity, and fourth scarcity of. Now land settlement system में हमने क्या पढ़ा था, which इसमें हमने पढ़ा था मेन ज़मींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, which was same, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1973. इसमें एक वर्ड आया था दैट वाज कॉल्ड लगान, जिसे हम कहते थे जो भी प्रॉफिट हमारा एग्रीकल्चर करने से आता था, इरिगेशन करने से आता था, उसे हम लगान कहते थे और उसकी एक डेट थी जो पर्टिकुलर फिक्स थी. देन उसके बाद हमने इंसिस्ट किया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. हमने जो है लाइवलीहुड के लिए जो क्रॉप्स हम ग्रो करते थे वो छोड़कर हमने कैश क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना चालू किया. देन थर्ड वॉज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मीन्स देयर वॉज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, कि हम जो पूरी तरह डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे फॉर इरीगेटिंग आर क्रॉप्स. ठीक है, ना तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ थी, ना हमारे पास मॉडर्न इरीगेशन फैसिलिटीज़ थी कि तो हम कोप अप कर सके किसी और मार्केट में. देन स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. और स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो अपना सकें. ठीक है. नाउ द सेकंड सेक्टर वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन के भी 5 रीजंस हैं, दैट इज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, or limited role of public sector. We will discuss it one by one. Now, deindustrialization or decline of handicraft industry. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold. That is, to get raw material from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain, to sell finished products of British industries in Indian market at higher prices. क्या था, फर्स्टली जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिश रूल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो था रॉ मटेरियल इंडिया से चीप रेट्स पर लेके जाए. ठीक है. और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स जो है ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है इंडिया को मार्केट में हायर प्राइसेस पर बेचे. थर्ड वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच. व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? इसमें क्या था, देयर वाज अ ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया and duty-free import of final goods of British industry to India, but heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. क्या था इसमें, फ्री तो एक्सपोर्ट वो रॉ मटेरियल करते थे, फ्री इंपोर्ट वो फिनिश प्रोडक्ट्स जो थे वो करते थे, पर हैवी ड्यूटी जो इम्पोज होता था वो होता था एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर. एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट वर फुल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन which were low priced,
which led to decline of handicraft industry. अब इससे क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट थी वो पूरी तरह फिनिश्ड गुड्स से भर गई थी और उनके पास जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए बिल्कुल ही कम प्राइस या जो मटेरियल था वो बचा ही नहीं था. Then next was adverse effects of decline of handicraft industry. What was the adverse effects of decline of handicraft industry? डिक्लाइन होने से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा था वो था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोज़गारी. जहाँ लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रह गया था. द डिस्प्लेज आर्टिजन्स वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. अब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो क्या करते थे, जो एग्रीकल्चर है उसको अपने लाइवलीहुड के लिए अगेन दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर. दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेजेस एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर. इससे क्या हुआ, जो काम बटा हुआ था कि आधे लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में थे, आधे लोग जो एग्रीकल्चर में थे, अब वो क्या हो गया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई. तो अब लोग जो हैं अब खाने के लिए कहाँ किस पे डिपेंडेंट होंगे, एग्रीकल्चर पे. तो जो पॉपुलेशन था वो ओवर क्राउडेड हो गया एग्रीकल्चर में और वो सारे लोग एग्रीकल्चर करने लग गए लाइवलीहुड के लिए. सेकेंड वॉज इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स. अब क्या हुआ, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स में मतलब जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो फॉरेन मार्केट में जो है वो कंपटीशन में बिल्कुल खड़े नहीं हो पाए बिकॉज हमारी जो इंडियन की क्वालिटी थी वो चीप क्वालिटी कही जाती थी. इट रिजल्टेड इन न्यू डिमांड इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वॉज नॉट फुलफिल्ड थ्रू लोकली मेड गुड्स. अब इंडियन इकोनॉमी में न्यू डिमांड थी मार्केट की, बट जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, ठीक है, वो लोकली मेड गुड्स थे, वो उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था. एज दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेड बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. और ये जो डिमांड थी वो कहाँ से फुलफ़िल होती थी, जब ब्रिटेन जो है इम्पोर्ट करता था अपने मैन्युफैक्चर गुड्स, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स टू इंडिया. नाउ नेक्स्ट वॉज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. What do you mean by capital good industries? Now, these industries refers to industries which can produce machine tools, which are in turn used for producing articles for current consumption. मशीन टूल्स, कैपिटल गुड्स मतलब जिससे कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. ब्रिटिश रूल जब था तो इंडिया के पास कोई भी ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर सके, डेवलप कर सके. ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स. ब्रिटिशर्स कभी जो है इंडिया को हेल्प नहीं किया इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कैसे भी, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो ब्रिटेन पे, ब्रिटेन जो है वो सप्लाई करे उनको कैपिटल गुड्स और हैवी इक्विपमेंट्स. Next was low contribution to gross domestic product, that is GDP. Now what do you mean by gross domestic product? Gross domestic product का मतलब होता है जो भी goods जो within the territory of India या within the territory of our country produced हुए हैं उन्हें हम कहते थे gross domestic product. Now contribution जो था gross domestic product का वो कम था. क्यों? यहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी because there was lack of investment, scarcity of investment was there, no modern technology was there, no modern machineries were there to produce the products. The growth rate of the new industrial sector and its contribution to the GDP or gross value added remained very small. तो जो उसका contribution था that was very small. Then limited role of public sector. Now the limited area of operation of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector. Public sector was significant, limited थी, ठीक है. The public sector remained confined only to railways, power generations, communication ports and some other department undertakings. जो public sector थी वो भी limited थी, उनका scope limited था, that is सिर्फ railways तक, power generation तक, communications तक, ports तक and other departmental undertakings. Finally, it can be concluded that India remained backward in industrial sector during the British rule. तो हम फाइनली इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर
इंडिया जो थी उसकी इकनॉमी जो थी, उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी पूरी तरीके से बैकवर्ड हो गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर कमर्शलाइज हो गया था, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से रूंड हो गया था। एंड नाउ नेक्स्ट कम फॉरेन ट्रेड। The restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. जो restrictive policy थी किसकी, ब्रिटिशर्स की, वो उसने अफेक्ट किया स्ट्रक्चर, composition and volume of India's foreign trade. Like for example, the state of India's foreign trade British rule is discussed as under. कैसे? फर्स्टली द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स जो बनना चाहती थी, जो करना चाहती थी, वो उसने किया कि वो एक्सपोर्टर बनी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की और इम्पोर्टर बनी फिनिश गुड्स की। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स like light machinery produced in British industries. So आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने आखिर में वो ही काम किया जो वो करने के लिए आए थे, कि इंडिया को जो है उन्होंने क्या बना दिया, डिपेंडेंट बना दिया। उन्होंने जो एक्सपोर्टर बना दिया उनको प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इम्पोर्टर जो है अपने खुद के फिनिश कंज्यूमर गुड्स जो भी बनाते थे वो इंडिया में उसको सेल करते थे। एंड सेकंड वाज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल मीन सिंगल एक ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पे। मोर देन 1.5 of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Ceylon, and Persia. जो मोनोपोली थी इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ब्रिटेन, ना वो कहीं और जो है अपना ट्रेड कर सकते थे। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The opening of Suez Canal in 1869 served as direct route for ship operating between India and Britain. Now this was the main reason. We can say the opening of Suez Canal in 1869 served a direct route for ship operating between India and Britain. उन्होंने जो स्विस कैनाल जो ओपन किया था वो एक डायरेक्ट रूट बना थ्रू शिप, जिससे कि वो अपना जो मार्केट है या जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको शुरू कर सके। नाउ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडियन वेल्थ जो है उसकी ड्रेन मीन्स उसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, ये तो हम सब जानते हैं। नाउ देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू excess exports. Our export surplus was used to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain to meet expenses on war fought by the British government to import invisible items. Britishers ने तो सारा अपना ही फ़ायदा देखा। उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट जो था वो सरप्लस था ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स। वो क्या हुआ था, जो पेमेंट था, ठीक है, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, जो भी पैसा होता था वो अपने वॉर वगैरह जो है उसको उसकी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज़ करते थे। इम्पोर्ट करते थे इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। तो इन सब से जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गया इंडिया के लिए टू सर्टेन प्लेसेस ओनली। नाउ नेक्स्ट हम डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब, demographic conditions during the British rule exhibited two features of stagnant and backward Indian economy. First, official census. The first official census was conducted in the year 1881. You know, what do you mean by demographic condition? Demographic conditions means what was the population, what was the death rate, birth rate, infant mortality rate, and these were the demographic conditions. Now, first of all, first official census was conducted in the year 1881. 1921, the year of great divide. Before 1921, India was in the first stage of democratic transition. The second stage of transition began after 1921. So the year 1921 is described as year of great divide. Now learn this year of great divide and its year. 1921, year of great divide. What does this means? Let's start.
The demographic condition during the colonial rule is described in following points: high birth and death rate. Now under the British rule, इंडिया में बर्थ रेट जो था वो बहुत हाई हो गया था, डेथ रेट भी बहुत हाई हो गया था. बर्थ रेट refers to number of children born per thousand and year. ठीक है. डेथ रेट refers to number of people dying in a year. Now both birth rate and death rate were very high at nearly 48 and 40 per thousand respectively. हर चीज़ में जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है धीरे धीरे रूंड होता चला गया. सेकेंड वॉज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट बढ़ते ही जा रहे थे. लिटरेसी रेट refers to total number of literate persons expressed as a percentage of the total population. The overall literacy level was less than 16%, out of which female literacy was about 7%. मतलब पढ़े लिखे जो लोग थे वो कम होते जा रहे थे, लिटरेट जो है वो ज़्यादा होते जा रहे थे. थर्ड, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. ना पब्लिक health facilities were either unavailable to large mass of population or were available were highly inadequate. मतलब एक तो पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, और अगर थे तो उनकी हाईली इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ थी. एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज़ वर वाइड स्प्रेड. ठीक है. डिजीज़ जो है वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज़ जो थे, पानी से हवा से जो भी डिजीज़ होते थे, ठीक है, वो बढ़ते जा रहे थे. Low life expectancy. Now, life expectancy refers to the average number of years for which people are expected to live. That is very low. 32 years in contrast to present 69 years. मतलब जो लोगों की जीने की एज थी वो भी उसका जो लेवल था वो कम होता जा रहा था. कहाँ पहले 69 ईयर्स तक जो लोग जीते थे, बट नाउ इट कम्स टू 32 ईयर्स ओनली. Then fifth was high infant mortality rate. Infant mortality rate क्या होता है? It refers to the number of infant dying before reaching 1 year of age. मतलब वो 1 साल तक पहुंच भी नहीं पाते थे, बट वो जो बीमारी थी, ठीक है, जो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, उनकी वजह से वो जो है 1 ईयर की एज तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी. Now, sixth one was widespread poverty. There were no reliable data about the extent of poverty, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during colonial period. The standard of living of common people in India was very low. What do you mean by the term poverty? Poverty means below poverty line. पुअर पीपल, ठीक है, उनके पास ना जीने के लिए पैसे हैं, ना कुछ करने के लिए पैसे हैं, और कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी लोगों की, ना क्लोथ है, ना फूड है, ना शेल्टर है. ठीक है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज वेरी पुअर. At last, it can be finalized that British rule was the main reason to worsen the profile of India's population. इससे ये पता लगा सकते हैं हम कि जो ब्रिटिश रूल थी, या ब्रिटिश रूल का ओरिजिन जब इंडिया में हुआ था, उसने हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी उसको रूंड कर दिया था. Now in this diagram we can see the demographic condition during the colonial rule. We can learn the points like high birth and death rate was there, extremely low literacy rate was there, poor health facilities were there, high infant mortality rate was there, low life expectancy was there. Low life expectancy means कहाँ पहले 69 ईयर्स तक लोग जीते थे, अब सिर्फ 32 ईयर्स तक ही पहुँच पा गए. Then widespread poverty was there, no standard of living was there of common people. ठीक है. Now next is occupational structure. Occupational structure means occupation जो structure था वो कैसा था. Occupational structure refers to the distribution of working persons across primary, secondary and tertiary sectors of economy. Now there are three main sectors of the economy: primary, secondary and tertiary. First of all, let's take primary sector. It includes production units exploiting natural resources like land, water, subsoil, etc. For example, farming, fishing, mining, animal husbandry, forestry, etc. Now, primary sector is basically natural things like land, water, soil, assets. Now, these are like farming, fishing, mining, animal husbandry, etc. Second is secondary sector. Secondary sector means which is derived from primary sector. Now, this sector is engaged in transforming one good into another good, like converting raw material into finished goods. For example, converting sugarcane into sugar, construction companies, power generation, as they depended on primary sector, that is why they are called secondary sector. Now, secondary sectors जो थे वो fully dependent थे primary sectors पे. Primary sectors उनको products ला के देंगे,
रॉ मटेरियल ला के देंगे, फिर वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू sugar. Third is tertiary sector. Tertiary sector is properly what we can say that is service sector. It includes production units engaged in providing services like transportation, education, finance, government. It can be anything, administration, etc. Now, during the colonial period, the occupational structure of India showed little sign of change. Now, what was that change? The predominance of primary occupation, that is agriculture sector. इंक्रीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वेरस डिक्लाइन इन वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स जो थे वो इंक्रीज़ हो गए थे और जो डिक्लाइन हो गया था वो हो गया था वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर्स. नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज़, सर्विस एंड फैसिलिटीज़ विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड बैंकिंग, और हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ दीज फैसिलिटीज़ वर वेरी पुअर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ये भी जो फैसिलिटीज़ थी हमारी इंडियन इकोनॉमी के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी वेरा बहुत ही पुअर था. दीज फैसिलिटीज़ were very poor. Like for example, first roads. The British rulers could not accomplish much on construction of roads. The roads that were built primarily served the interest of mobilizing army and shifting raw material. Roads जो थे वो properly construct नहीं हुए थे, properly build up नहीं थे. वो सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट जिसमें हो जाता था सही मोबिलाइजिंग आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, उसी के लिए वो रोड्स डेवलप करते थे. सेकेंड, रेलवेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज. द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू वेज. रेलवेज एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. इट एनहांस कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अगेन इसमें कमर्शलाइजेशन आ गया था. कैसे? एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें पैसे देना, प्रॉफिट बनाना. दैट वॉज ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. द मेजर्स टेकन फॉर डेवलपिंग वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी जो भी था वो भी फुली डेवलप नहीं था. कम्युनिकेशन. इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. द पोस्टल सर्विस रिमेन अनएडिक्वेट. बस टेलीग्राफ पर्पस जो था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करा जाता था. पोस्टल सर्विसेज जो पोस्टेज वगैरह जो थे वो इनएडिक्वेट थे. The following points are the clear proofs of economic underdevelopment during British rule. Now these were the points जो पूरा sum up है कि ये सारे points जो थे वो ब्रिटिशर्स मतलब इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट था इंडिया का. क्या क्या रीजन से? द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ना तो इंडिया की नेशनल इनकम पे किसी ने ध्यान दिया, ना पर कैपिटा इनकम पे. वो हमेशा कांस्टेंट रहा. अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक जो ऑथर थे जिनका अटेम्प्ट जो था वो सिग्निफिकेंट था, दैट वाज डॉक्टर राव. देन इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. जो डिपेंडेंस था वो सबसे ज़्यादा किस पे होता जा रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे. ठीक है. देन देयर वाज ज़मींदारी सिस्टम. ज़मींदारी सिस्टम में हमने पढ़ा था ज़मींदारी और वी कैन से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. ठीक है. इसमें एक लगान जो है वो फिक्स्ड डेट पर दिया जाता था. Then traditional method of cultivation. Now there was no modern technology, modern methods of cultivation or irrigation. High frequency of famines. High frequency of famines means मतलब floods वगैरह, ड्रेनेज का हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे. ठीक है. क्योंकि इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो थे प्रॉपर पूरी तरीके से, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे. एंड एज अ रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड टू द कंप्लीट रूल ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. इन सब की वजह से जो है these were the reasons of underdevelopment of the Indian economy. As a result, British government led to the complete ruin of the economy. In spite of that, it has some positive effects on the Indian economy as well. इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉजिटिव इफेक्ट डाला या पॉजिटिव इम्पैक्ट वी कैन से इंडियन इकोनॉमी में रहा.
That's it. There was a growth in agriculture sector due to expansion of aggregated area under cultivation. सबसे पहला जो वो था ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बढ़ गया था, वो ग्रो हो गया था क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो थी वो एंगेज थी किसमें, एग्रीकल्चर में. Second was development of road and railways provided cheap and rapid transport system and opened up new opportunities of economic and social growth. ठीक है, रोड और रेलवेज़ के डेवलपमेंट होने से जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो ओपन अप हो गया और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ करने के लिए. Then roads and railways worked as a great check on occurrence and impact of famines as food supplies would be transported to the affected areas in case of droughts. अगर कभी सूखा हो जाता था, ठीक है, फ्लड्स वगैरह आ जाते तो रोड्स और रेलवेज जो थे, ठीक है, वो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते थे ताकि वो अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं वहाँ तक फूड सप्लाई कर सके. इट हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. अब ब्रिटिश रूल ने क्या किया, लोगों को कमर्शलाइजेशन सिखाया, मार्केट में सेल करना सिखाया, प्रॉफिट बनाना सिखाया, जिससे इंडियन इकोनॉमी जो थी, बार्टर सिस्टम जो था, बार्टर सिस्टम वॉज वन गुड के बदले एक अनदर गुड देना. ठीक है, मैंने आपको बाजरा दिया, आपने मुझे गेहूँ दे दिया, तो बार्टर सिस्टम जो था वो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बदल गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच सर्व्ड एज रेडी reckoner फिर फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के लिए. Now, what was the state of Indian economy on the eve of independence? This is the last topic. इन सबको पढ़ने के बाद, पूरे सेक्टर्स को पढ़ने के बाद, पूरा एक्सप्लॉयटेशन पढ़ने के बाद, इंडियन जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन पूरी इकनॉमी को रूंड कर दिया था, उसके बाद जो स्टेट थी इंडियन इकनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या थी. द ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकनॉमी इनटू कॉलोनियल बैकवर्ड सेमी फ्यूडल बैकवर्ड डिप्लीटेड एंड एम्प्यूटेड इकनॉमी. इन सारी इकनॉमीज़ को हम एक बाय वन पढ़ेंगे. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्टली colonial economy. Now, British rule resulted in huge drain of wealth from India in order to facilitate growing British industry with the supply of raw materials from India. Colonial economy means क्या होता है, ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ इन फ्रॉम इंडिया, मतलब जो पूरी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, हमारा जो वेल्थ था, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, वो सारा कौन ले गया, ब्रिटिश इंडस्ट्री ले गई. ठीक है, हमारे साथ रॉ मटेरियल्स जो है वो ब्रिटिश इंडस्ट्री ले गई. क्यों, क्योंकि वो फिनिश गुड्स जो है वो बनाना चाहती थी. दे ऑल्सो एनकरेज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी. वो कमर्शलाइजेशन चाहती थी इंडियन एग्रीकल्चर का, ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी के काम आए, ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाए. सेकेंड वॉज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. नाउ बाय द क्लोज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जैसे जैसे ब्रिटिश पीरियड जो था वो ख़त्म होने वाला था, ठीक है, देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ feudal system. Now, what was feudal system? Feudal system means that is landlord and tenant relation. The land settlement system gave birth to feudal relation. The landlord charged very high rate of lagan and was very cruel to the cultivators. जो भी उनके खेतों में काम करते थे, ठीक है, उनके लिए वो उनको टॉर्चर करते थे, उनके लिए वो बहुत क्रूअल बन चुके थे और वो हाई रेट ऑफ लगान जो है उनसे चार्ज करते थे. Second, introduction of capitalist system. The establishment of modern industry lead to creation of two classes, capitalist and laborers. Then third was stagnant economy. Stagnant means, as the name suggests, stagnant means stagnant हो जाना, मतलब constant हो जाना. Stagnant economy is one which is growing at a very low rate. The country's growth of aggregate rural output was less than 2% and growth in per capita output was only 0.5%. Then fourth one was backward economy. Indian economy was backward and underdeveloped due to many reasons like low level of productivity, traditional methods of agriculture, high death and birth rate, mass illiteracy, etc. वो बैकवर्ड इकनॉमी क्यों हुई थी, वो बैकवर्ड इकनॉमी जो थी अंडर डेवलप जो थी उसके बहुत सारे कारण हैं. लाइक लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वॉज देयर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वॉज देयर, नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वॉज देयर फॉर इरीगेशन, हाई डेथ एंड बर्थ रेट वॉज देयर एंड मास illiteracy which we have discussed earlier. Then fifth was depleted economy or we can say depreciated economy. Depleted means पूरी तरीके से ख़त्म हो गई. It refers to an economy where no arrangements have been made to replace the physical asset depreciated due to excessive use. Indian industries has to work beyond their capacity to meet the increased demand of plant and machinery, equipment, etc. for the war.
They did not make any arrangement to replace the depreciated physical assets. ना तो इंडियन इकोनॉमी जो थी उसके पास, एक इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी उसके पास कोई बेसिक अरेंजमेंट्स नहीं थे, ठीक है। उनके पास जो एसेट्स थे, फिजिकल एसेट्स थे जिनसे वो काम में लेते थे, वो डेप्रिशिएट होते। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उनकी वैल्यू में डिक्रीज़ होना, ठीक है। हम किसी चीज़ को यूज़ करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो धीरे 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 डिक्लाइन होती है, ठीक है, डेप्रिशिएट होती है। बट इंडियन इकोनॉमी के पास जो था, या इंडिया के पास जो था, अगर कोई वैल्यू, अगर कोई एसेट, किसी एसेट की वैल्यू जो है अगर डिक्रीज़ हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, कोई अरेंजमेंट ही नहीं था। And then last was amputated economy. The Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on basis of religion, caste, language and culture. Britishers जो थे वो चाहते थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। What was divide and rule policy? On the basis of caste, religion, language and culture. मतलब वो यूनाइट ना रहे, ठीक है। यूनिटी जो होती है इंडिया में, वो यूनिटी ना रहकर एक सेपरेशन हो जाए, ठीक है, ताकि लोग अपने ही उसमें काम करें, अपने ही ईगो में काम करें, ठीक है। देन दिस वाज द चैप्टर. नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स यू कैन लर्न. फर्स्ट इज बैटल ऑफ पलासे 1757, then opening of Suez Canal 1869, and year of Great Divide, that is 1921. So friends, I hope that you like the video. Please like and subscribe my channel. Thank you all.